Okay, good morning students. Today we will start the first chapter of class 12 and that is sexual reproduction in flowering plants. You know, reproduction is a fundamental feature, correct or not? Is it a defining feature? Is it a defining feature? No. Why? Why? Yes, very good. In the living world, you have read there are some couples not having kids. And you know that drone, honeybee, you know drone? Drone is also sterile. Like that mule, you know, horse and donkey crossing mule, that is also, that is not fertile. Okay, drone is also sterile and mule is also sterile. And many couples not having kids, they are doing Lakshya Shiva Puja and they don't have any kid. So like that, reproduction is a fundamental character, correct? Because if I am existing, then I have my father and mother. Got? Without reproduction, the existence of species is in danger. One individual may opt for Baba or none or something like that. When I will be unmarried forever. I will sacrifice my life for the betterment of the society. Like you may say, many doctors, they are unmarried because they have to give their life for the betterment of the patient and society. Okay. Anyway, now we are talking about angiosperm. Angiosperms, I told you, it is also called flowering plants. And the plant body is 2n or n? The plant body is 2n or n? Can you tell me the plant body? Sporophyte. Flowering plant is 2n or not? 2n means it is sporophyte. Sporophytic generation is dominating. Gametophytic generation you will not find outside. It will be within, pollen within. कब reproduction होगा और कब reproduction खत्म हो जाएगा, we don't know. And we will find seed, plant, again seed, like that. Okay. This sporophytic generation, therefore, it has root, stem, leaf, flower, fruit, seed, bud भी मिलता है कि नहीं? Bud, embryo मिलता है कि नहीं? Embryo, yes, embryo भी मिलता है. Xylem, xylem भी मिलता है. फ्लोएम भी मिलता है, एवरीथिंग. बिकॉज थोड़ा सा मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट को प्लांट किंगडम के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ. ओके, विल स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस सो दैट इट विल मोर इंटरेस्टिंग. ओके, दैट मीन्स vasculature is also there, embryo is also there. This part, root, stem, leaf, is vegetative part or reproductive part? Vegetative part. And the bud is what? Vegetative or reproductive? It is both. Maybe vegetative bud is there, maybe floral bud, reproductive bud is there. And flower, fruit, seed, we know it is the reproductive part. And what is the most important organ? We don't have organ system in plants. In animals, like human being, we have organ system. But plants having organs. What is the most important organ? Can you tell me? Yes, very good. Most important organ is flower. यहाँ तक हो गया आपका? Most important organ is flower. Why? It is meant for sexual reproduction. Okay? It is meant for sexual reproduction. तो थोड़ा सा स्पीड में लिखना, ज़्यादा स्पीड नहीं. You can write the keywords only, no problem. Okay? आगे चले. Now tell me why reproduction is essential. Why reproduction is essential? बताइए. अभी तो बताया था reproduction is not a defining character, but reproduction is a fundamental character. Reproduction is essential for identity of a species. Correct? So it is needed for identity of a species. What do you mean by identity? मतलब the flow of life. Okay? अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इंसेक्ट रिप्रोडक्शन करता है ना. सबसे ज्यादा क्या है? किसका पॉपुलेशन ज्यादा है? किसका स्पीसीज? इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स विल डू. इवन स्लो ब्रीडर एलिफेंट का गेस्टेशन टाइम इज 2 years. ओके, देयरफॉर स्लो ब्रीडर भी अपना आइडेंटिटी मेंटेन करता है. ओके. सेकेंड,
neutralizes, reproduction neutralizes the loss ड्यू टू डेथ. डेथ में हम लोग का लॉस होता है, करेक्ट? तो हम लोग अपना आइडेंटिटी मेंटेन करेंगे कि नहीं? ओके, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी दैट कि आप लोग जन्म लिए, ओके, क्योंकि उनके बच्चों का बच्चा होना चाहिए, ऐसे नहीं है. दे आर हैप्पी दैट कि मेरे जैसे दिखने में है. बुझेला? मो जेजेबापा मो भलिया देखिବାକୁ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲି. दैट वाज द कॉन्सेप्ट. समझ में आ रहे? तो नॉट दैट दे आर गोइंग टू डाई एंड हम लोग आगे और हम लोग देख के वो खुश हो रहे. नो, बोथ मे बी ग्रेट ग्रैंडफादर विल थिंक आई एम गोइंग टू डाई एंड मेरे बच्चे का बच्चा आ गया. ओके, बट इट्स ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. समझ में आ रहे? जनरेशन टू जनरेशन. तो जो भी हो, डेथ इज मस्ट और नॉट? डेथ इज मस्ट. तो इसलिए रिप्रोडक्शन चाहिए फॉर सर्टेन इंडिविजुअल शुड बी एडेड, और जो हम लोग के जैसे दिखते हैं, लाइक वी गेट्स लाइक. जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बेबी बनाएगा, लाइक दैट. ओके, तो लाइक फॉर दैट रीजन ऑल्सो इट इज नीडेड. सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशंस. करेक्ट और नॉट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन. और वेरिएशन कैसे आता है बताओ? हाउ वेरिएशन इज कमिंग? कैन एनी ऑफ यू टेल मी कैसे वेरिएशन आता है? बताओ. वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर के कारण आता है. वेरी गुड. एक है क्रॉसिंग ओवर. सेकेंड वेरिएशन का कारण बताओ? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chromosomes. Even if crossing over will not be there, but gametes will be different. And third, chance fertilization. You are a girl or you are a boy. It is because of chance. By chance आप बेटा बन गए. अगर एक सेक्स होता तो आप लोग क्या होते? तो आप लोग बेटी हो जाते. एंड अगर आपके पास XY आ जाता तो आप बेटा हो जाते. शुक्र मानो कि आपके पास XXY नहीं है. ओके, तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं. क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है. एंड शुक्र मानो कि आपके पास 44X0 नहीं है, नहीं तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा. ओके, तो थोड़ा सा अबनॉर्मलिटी हमें कितना प्रॉब्लम में डालता है. बट जो नॉर्मल भी है वो भी एक चांस है. ठीक है, तो गैमेट इज यूनिक और नॉट? अगर 100 पॉलेंस होगा तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलेंस? 1 टाइप, 2 टाइप, 4 टाइप्स और 100 टाइप्स? बोलो. 100 टाइप्स. एवरी टाइम ए न्यू pollen, न्यू मेगास्पोर, न्यू गैमेट, न्यू जाइगोट एंड यूनिक जाइगोट. यू आर यूनिक. आप भी यूनिक हो, आप भी यूनिक हो, आप भी यूनिक हो. रेवेंसा, समझ में आ रही कि नहीं? तो दैट मीन्स मैं भी यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं. ये भी करेक्ट है. करेक्ट है कि नहीं? अरे मैं भी तो प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हूं. तो आज से हम लोग के पास कुछ कैरेक्टर है जो वर्ल्ड क्लास है, किसी के पास नहीं है. बट नीट का एग्जाम कैसे होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पर होगा. आप अच्छा सिंगर हो, बबलिंग में क्या फायदा होगा? डांसर अच्छे हो, क्या फायदा? समझ में आ रहे? तो दैट मीन्स हम लोग को उस हिसाब से हम लोग का वेरिएशन को लाना पड़ेगा. बट एनीवे, आवर पॉइंट इज क्रॉसिंग ओवर, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एंड चांस फर्टिलाइजेशन. इट इज द बेसिस फॉर जेनेटिक्स ऑल्सो. जेनेटिक्स में वेरिएशन होता है कि नहीं? तो वेरिएशन. इट इज द बेसिस फॉर सेल डिवीजन ऑल्सो. म्यूसिस चाहिए हमें. इट इज द बेसिस फॉर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. 2n होता है, n to n कभी ना कभी होता है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है. समझ में आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज में होता है? मैं इसे रैंडमली टाइम वेस्ट कैसे करे, फटाफट पूछ लेते हैं ना, ये आ सकता है. तो क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज? प्रोफेज 1 का 5 फेज है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस. कहां पर होता है? एनी ऑफ यू? क्रॉसिंग ओवर बोलो, आप बोलो. क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन व्हिच फेज? Can any of you tell me crossing over occurs in which phase? Leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, diakinesis. बताइए. क्रॉसिंग पैकिटीन स्टेज में. एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स कौन सा स्टेज में? अनाफेज 1 में. ठीक है,
तो लिख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटिन स्टेज एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनाफेज 1, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम दे सेपरेट। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं? एनाफेज 1। चांस फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी यू नो। छोटा छोटा वर्ड लिखिए, पूरा लाइन लाइन हम लोग लिख चुके हैं, बोर्ड दे चुके हैं, और लाइन लिखना नहीं है। ओके, हमें बॉबलिंग करना है, एक पॉइंट पर फोकस्ड होना है। तो फोकस्ड अटेंशन आप पर माने जितना अटेंशन फोकस्ड होगा उतना अच्छा करोगे और मिरेकल होगा। डोंट थिंक दैट जहां मैं आता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, मैं मतलब मैं, ठीक है, मैं तो यूनिक हूं ना, तो जहां पर हम लोग आते हैं, जहां पर मैं आता हूं, उस बैच अगर ऑफलाइन बैच है तो किसी ना किसी को मिलेगा। तो इस क्लास में फ्यूचर डॉक्टर्स है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, वेदर यू आर दैट, आप हु इज दैट वी डोंट नो। ओके, तो उस पर आप काम कीजिए, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी ना किसी को मिलेगा। कोई कोई आपका हॉस्टल में बोलेंगे है, होगा नहीं होगा, नो, तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें मतलब नहीं, हमें मिलेगा और विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गेट इट। आगे चले। Now, how many types of reproduction is there? 2 types. Asexual reproduction, uniparental. Sexual reproduction, maybe uniparental. कैसे होगा? Do you know Jejunogamy? ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। ओके, एक ही प्लांट है कि नहीं? इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा कि नहीं? पंपकिन, कखारू, पानी कखारू जो है भी गछ हो, कुकुरबिटासी फैमिली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोटे गछरे भी हो पार। बट यूजुअली इट इज, यूजुअली क्या है बताओ? यूजुअली क्या है? यूजुअली इट इज बाई पेरेंटल। ओके, अगर हम डायोसियस बोलेंगे दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। याद है कि नहीं? ये मेल प्लांट है, मेल फ्लावर्स, ये फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर्स। इन दोनों के बीच में क्या सेल्फिंग हो पाएगा? नो। क्या जेटोनोगामी हो पाएगा? नो। अगर होगा तो जेनोगामी होगा। ठीक है, मैं थोड़ा आगे और थोड़ा वहीं पर रुकूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बच्चे चाहते हैं कि आई शुड से जेटोनोगामी, आई शुड से जेनोगामी, आई शुड से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गामी। गामी मतलब क्या है? मैरिज। गामी का मतलब क्या है? मैरिज। पॉलीगामी, इफ समबडी विल मैरी मेनी, द्रौपदी पॉलीगामी, श्री कृष्ण पॉलीगामी, ऐसे बोलते हैं ना, कृष्णा पॉलीगामी, कृष्ण भी पॉलीगामी है ना। ओके, कृष्णा क्या है, कृष्ण क्या है, हमें क्या पता? नहीं, शिव क्या है, शिवा क्या है, हमें क्या पता? तो हमें मई 4 तारीख को नीट पता है, बताया था। ओके, ओरिएंटेशन में बताया था। मैं ओरिएंटेशन 1-2 मिनट उसमें ही हो जाता है। ओके, 10 मिनट में हो जाता है। क्या ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन यही ओरिएंटेशन है, पढ़ना ही एक बच्चा बोला कि सर मेडिटेशन करे, मैं बोला मेडिटेशन तो पढ़ना ही तो डायनामिक मेडिटेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ना भी तो एक डायनामिक मेडिटेशन है, स्टैटिक मेडिटेशन नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो उस टाइप का है। आगे चलते हैं। तो फिर भी एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपको अपोमिक्सिस मुझे पढ़ाना है, लास्ट पैराग्राफ अपोमिक्सिस, तो वहां से थोड़ा सा बताना है, इसलिए मैं ये शुरू किया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये दिखाई दे रहे? ओके, ये दिखाई दे रहे ना ये? ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट, asexual reproduction is uniparental या asexual reproduction is biparental? It is uniparental, it is biparental or uniparental, correct? It is biparental or uniparental। हो गया। नाउ कभी कभी ये क्वेश्चन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके, बाईपेरेंटल और यूनिपेरेंटल, यूजुअली बाईपेरेंटल। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर स्पोर्ट्स और सिमिलर स्पोर्ट्स, और डिसिमिलर गैमेट्स और सिमिलर गैमेट्स। डिसिमिलर गैमेट्स, स्पोर नहीं। ओके, तो एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, whether this statement is correct or not,
fusion of dissimilar spores is sexual reproduction. Is it true? No. Gametes. Very good. Second, कहां पर वेरिएशन नहीं होगा? नो वेरिएशंस. इज देयर एनी वेरिएशंस? नो वेरिएशन. और यहां पर वेरिएशंस होता है. अगर मैं अपोमिक्सिस बोलूंगा तो किस साइड में रखूंगा बताइए? अपोमिक्सिस किस साइड में रखूंगा? असेक्सुअल. अगर एम्फीमिक्सिस बोलूंगा किस साइड में रखूंगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एबे पिलाने फेर को अपोमिक्सिस में भी गैमेट्स आर फॉर्म्ड बट फ्यूजन नहीं है. और एम्फीमिक्सिस गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड फ्यूज्ड. ये समझ में आया? दैट मीन्स अपोमिक्सिस गैमेट फॉर्म नहीं होगा ऐसा नहीं है. गॉट? गैमेट बनी बनी एमती नुहे. गैमेट बनी भी पारे किंतु गैमेट फ्यूज हेबनी. क्लियर? तो इट्स इज ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भलिया लगुची केना मियोसिस होची गैमेट फॉर्मेशन. मियोसिस न होई भी पारे बट गैमेट्स तो फॉर्म होची बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होउनी. हैला? क्लियर हेलो? क्लियर हो तो टिके राष्ट्रभाषा कले भल है. राष्ट्रभाषा कहले इंटरनेशनल लैंग्वेज कहले टिके भल है. आम बुझेइतिले. तो अपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस सरला. नाउ कोठी अडाप्टेशन अधिका हम? गोटे मेंढा मरिले सबु मेंढा मरिबे तो अडाप्टेशन इज लेस. एंड यहाँ पर क्या होगा? अडाप्टेशन इज मोर. क्लियर? अडाप्टेशन क्योंकि मेरे पास वेरिएशन है. ठीक है? तो नाउ ईपीएल से all will get medical इस बैच का. इज इट ट्रू? नो. क्योंकि कुछ तो वेरिएशन होगा. और all will not get मेडिसिन इस बार. ये क्या करेक्ट है? नो. कुछ तो वेरिएशन होगा. समझ में आ रहा है? अगर आप क्लोन्स होते सबका अंडरस्टैंडिंग सेम होता तो मे बी इट इज करेक्ट. बट हम लोग तो प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. किसी ना किसी को मिलेगा. हमें भी मिले. ओके ये ट्राई करो. अगर एक को मिलेगा वो मैं हूं ऐसे बोलो तब होगा. अडाप्टेशन लेस अडाप्टेशन मोर हो गया. अब मुझे बताइए मियोसिस एंड सिनगामी. सिनगामी तो कभी नहीं होता है. मियोसिस कभी कभी हो सकता है. दोनों को क्या लिखेंगे? एब्सेंट लिखेंगे यूजुअली. और यहां पर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट लिखेंगे. ओके तो थोड़ा सा लिखेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे. बताया था. तो मैं जानता हूं हाउ टू क्लोज द चैप्टर क्विकली. ओके तो थोड़ा पेशेंटली सुन लीजिए मुझे. तो यहां पर मियोसिस होता है. यूनियन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलते हैं? सिनगामी होता है. ठीक है? सिनगामी. सिन जेनेसिस सिनांड्रस ऐसे वर्ड सुने हैं कि नहीं? दैट मीन्स सिम्प्लाज्म ऐसे भी बोल सकते हो. ओके यूनाइटेड. समझ में आ गया? तो यहाँ पर मियोसिस होता है. सिनगामी फर्टिलाइजेशन एब्सेंट बट यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है. नाउ कुछ नहीं लिखेंगे. अब बोलना पड़ेगा. व्हिच इज एक्सपेंसिव? व्हिच इज पैसा खर्च होगा ज्यादा? फ्लावर बनाने में पैसे खर्च होगा कि नहीं? उसमें अच्छा अच्छा अरोमा डालना पड़ेगा. इत्र डालना पड़ेगा. तब तो इंसेक्ट्स विल बी अट्रैक्टेड. समझ में आ रहा है कि नहीं? और बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक नहीं तो लिविंग को पता है अरोमा के बारे में. लिविंग को पता है नेक्टर के बारे में. लिविंग को पता है ब्राइट कलर. ओके तो आप अगर ब्राइट कलर पहन के आए हो क्या ये इस वॉल को पता चलेगा क्या? नो. हम लोग आइडेंटिफाई. ओ रेड. ओ यस अच्छा 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 दिख रहा है. समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स अगर वो कलर्ड है, अगर वो नेक्टर है, अगर वो अरोमा है, ये सब किसका है? बायोटिक एजेंसी के लिए. देखो एक स्टेटमेंट में बना रहा हूं. आप बोलोगे कि थोड़ा सा जंप भी करना है बीच बीच में. तो आप मुझे बताइए एनेमोफिली इज वेरी कॉमन और रेयर? एनी ऑफ यू? विंड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन और रेयर? ये टफ क्वेश्चन है. रेयर. वाओ. आउट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक. एबायोटिक रेयर. अबायोटिक रेयर है ये ना. आउट ऑफ एबायोटिक विंड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन. तो ओवरऑल क्या हुआ? रेयर. अगर हम बोलेंगे आउट ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन विंड पॉलिनेशन और विंड एनेमोफिली इज वेरी कॉमन. ये करेक्ट है. ओके वेरी गुड आंसर. आगे चलते. तो ज्यादातर फ्लावर कलर्ड है. व्हाई? बिकॉज बायोटिक एजेंसी ज्यादा है. ओके
और बायोटिक में सबसे ज्यादा व्हिच ऑर्गेनिज्म? इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट के बीच में बी। और ये फ्लावर बोलता है कि तुम आओ, नेक्टर थोड़ा खा लो, नो पोलन थोड़ा खा लो, नेक्टर थोड़ा पी लो। व्हाट आर द कॉमन रिवार्ड्स? एंटिमोफिली में कॉमन रिवार्ड्स क्या है? नेक्टर, एडिबल नेक्टर एंड एडिबल पॉलेंस एंड नेक्टर। दोनों एडिबल है, नहीं तो खाएगा कैसे? जो पिएगा वो भी तो एडिबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 3 क्वेश्चन बना लिया, 3 क्वेश्चन बना चुका हूं, डायोसिस बना चुका हूं, जेटोनोगामी बना चुका हूं, कॉमन रिवार्ड्स बना चुका हूं। एनिमोफिली आउट ऑफ एबायोटिक कॉमन है, तो फ्लावर का एमती कहवा, फ्लावर रो सुगंध, फ्लावर रो मधु, मोहु मोहु नेक्टर कौन तुम मानक मन रे आनंद जागृत करने पाई ना पॉलिनेटिंग एजेंट्स को डाकुची पॉलिनेशन करने पाई को ना मंदिर ये कहला जे नाई मु जाउची पूजा करने पाई, ठाकुरंक चरण रे समर्पण करने पाई फूल जन्म होईची ना, पॉलेंस माने को पॉलिनेशन पाई डिफरेंट एजेंसी को से डाकुची कलर द्वारा हैला बुझेला। एबे आसो now there are 3 subphases, correct? 3 subphases. What are those 3 subphases? One is pre-fertilization, one is pre-fertilization, then fertilization, then post fertilization. Very good, post fertilization. तो आपका काम क्या है? आपको बोलना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा वो बोलना। पॉलिनेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कुछ भी बोलो, बैठ के बोलो। हाँ, पॉलिनेशन क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओके। सीड जर्मिनेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ओके। पॉलिनेशन समझ में आ गया आपको? ओके, तो इट्स सो इजी, बढ़ जाइए, ओके। तो प्री फर्टिलाइजेशन में फ्लावर फॉर्मेशन आएगा, पॉलिनेशन आएगा। अगर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बताओ, हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बताया था, ओके। फर्स्ट आपको कुछ पढ़ना नहीं है, मैं चेक कर लिया, ऑल ऑफ यू आर ओके। नाउ विल स्टार्ट। रूट 2n होगा या n होगा बताओ? रूट 2n। स्टेम 2n। पोलन मदर सेल 2n। न्यूसेलस 2n, वेरी गुड, न्यूसेलस 2n। एंडोस्पर्म सब एंजियोस्पर्म का है, एंडोस्पर्म 3n, वेरी गुड। अल्यूरन लेयर, अल्यूरन लेयर, अल्यूरन लेयर, एनी ऑफ यू, अल्यूरन लेयर 3n, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म है, ये प्रोटीन रिच एंडोस्पर्म है, तो अल्यूरन लेयर 3n। तो इफ यू डोंट नो यू से 2n, इफ यू नो यू से n और 3n। आप बताइए मेल गैमेट क्या होगा? मेल गैमेट n 2n 3n, मेल गैमेट n। फर्टिलाइज्ड एग 2n, ओनली एग n, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। नाउ रूट सेल लिखो, रूट सेल, इफ रूट सेल हैज 20 क्रोमोजोम्स, अगर रूट सेल के पास 20 क्रोमोजोम्स है तो पोलन के पास कितना क्रोमोजोम होगा बताओ? रूट सेल पाखरे 20 क्रोमोजोम अच्छी, ताले पोलन पाखरे केते होबो? वेरी गुड, 10। अल्यूरन लेयर पाखरे केते होबो? 30। 2n बराबर 20, n बराबर 10, 3n बराबर 30। And we are talking about this, about मेज। मेज का 2n is 20, वेरी गुड, आपको मैं जान लिया, आपको मैं आइडेंटिफाई यू, वेरी गुड। तो मेज का क्रोमोसोम, तो ऑलवेज यू शुड ट्राई टू अट्रैक्ट मी, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका बातचीत में, आपका अंडरस्टैंडिंग में, हर एक टीचर को आप बोलो कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ सर, और मैं ही पढ़ लूंगा, ऐसे कीजिए, वो फायदा है। टाइम कम है, फटाफट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ सेकंड क्वेश्चन में बोलूं, उसके बाद ये हुआ ना, कंप्लीट हुआ, कोई भी बोल सकते हो। 2n, n, न्यूसेलस क्या होगा? 20। इंटेगुमेंट क्या होगा? 20। सेपाल क्या होगा? 20। पेटाल अगर मालूम नहीं है 2n है,
क्योंकि प्लांट बॉडी तो 2n है। स्पोरोजिनस सेल कौन हम 20। वेरी गुड। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 2 इंपोर्टेंट मेयोसाइट्स। मेयोसाइट्स क्या है? जो 2n है और जिसमें मियोसिस होगा। मेयोस्पोर नहीं, दिस इज नॉट मेयोस्पोर, दिस इज मेयोसाइट। नाउ टेल मी 2 मेयोसाइट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, that is PMC, microspore mother cell or pollen mother cell. The second one is megaspore mother cell. इसका फुल फॉर्म लिखो, PMC लिखो, pollen mother cell and megaspore mother cell। ହେଲା, बुझिपाल कि नहीं? बुझिपारछु कि नहीं तमे? मेयोसाइट माने कौन? तमे छेड़ा हुआ मेयोसाइट रिप्रोडक्टिव सेल्स और सोमाटिक सेल्स। वेरी गुड, जर्म सेल्स, बढ़िया आंसर देला। सेकेंड, इज इट द लास्ट 2n सेल? हाँ, कहना आपरे तो स्पोर बन जीव ना, एन बन जीव, बुझेला? ताले वर्तमान मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो थिरे मेयोसिस हबो एवं पोलेन बनिबो ता ना कोन? पोलेन मदर सेल। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो थिरे मेयोसिस हबो एवं मेगास्पोर बनिबो ता ना कोन? मेगास्पोर मदर सेल। वेरी गुड। ताले लास्ट सेल ऑफ द एन कोन? ना गैमेट। स्पोर एला फर्स्ट सेल, लास्ट सेल कोन? गैमेट। गैमेट माने मिसिले कोन हेबे? जाइगोट। ताले व्हाट इज द फर्स्ट 2n सेल? जाइगोट। वेरी गुड, हला बुझेला तो बस। ताहले हमें कहि परिबा स्पोरोजेनेसिस फास्ट और गैमेटोजेनेसिस फास्ट? स्पोरोजेनेसिस। वेरी गुड। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 3। चलो सीड से शुरू करते हैं, ठीक है? सीड से शुरू हुआ, सीड जर्मिनेशन होगा, तो सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? सीए किए सी है जी से जी भी हो जी गिबर्लिक एसिड्स है ना। तुम बही रे देइछि नॉट ओनली गिबर्लिक एसिड्स, किछि हार्मोन लाइक एथिलीन, एथिलीन यू नो गैसेस हार्मोन, से भी बेड़े बेड़े साहाय्य करे, किंतु बही रे एटा देइनी। एक्चुअली मेन सीड जर्मिनेशन हार्मोन ना कौन? जी गिबर्लिक एसिड्स, यू कैन राइट। देन कौन हे गला हमर एटा? सीडलिंग हे गला। तापरे कौन हे गला? प्लांट हैला, प्लांटलेट। तापरे कौन हैला? प्लांट हैला, बड़ प्लांट हे गला। तापरे कौन हैला? ना फ्लावर हैला। फ्लावर रे कौन हैला? ना स्पोर बनिला, स्पोर्स। स्पोर्स गुड़ा कोथिरे कन्वर्ट हेले? गैमिट्स। गैमिट्स माने कौन कले? ना पॉलिनेशन कले। पॉलिनेशन पर कौन हैला पिला माने को? डबल फर्टिलाइजेशन हैला। कौन हैला? डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगल फर्टिलाइजेशन ना डबल फर्टिलाइजेशन हैला? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पर एम्ब्रियो फॉर्म हैला ना एंडोस्पर्म फॉर्म हैला? एंडोस्पर्म फर्स्ट, एम्ब्रियो सेकंड। प्रथमे जाइगोट, सेकंड पिक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कोथरे कन्वर्ट हबो? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रु एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनिले खाइबा सफिशिएंट हेले फिर जाइगोट डिवाइड करिवो, हैला? तो दिस इज द लाइफ साइकिल। ता माने कोठी हमरो मियोसिस दरकार, पिला माने को कोठी मियोसिस दरकार? स्पोरोजेनेसिस रे दरकार कि नहीं? किंतु गैमेटोजेनेसिस स्पोर जतरे बनुची सेतरे मियोसिस दरकार ना माइटोसिस दरकार? माइटोसिस दरकार। क्लियर हेलो? माइटोसिस दरकार। आमे कौन शुणितिले? गैमेट बनिया पई मियोसिस दरकार, किंतु एबे आमे कौन शुणुचे? गैमेट बनिया पई तो माइटोसिस दरकार नहीं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मियोसिस दरकार। प्रथमे स्पोर बनिला, तापरे गैमेट बनिला, ता माने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तम बॉडी रे डायरेक्टली बनिवो ना इनडायरेक्टली बनिवो? तम बॉडी रे स्पोर बनिवो ना गैमेट बनिवो? कुह। गैमेट बनिवो। आम बॉडी रे डायरेक्टली बनिवो, डायरेक्टली बनिवो, गैमेट बनिवो, स्पोर बनिवोनी, हैला? किंतु प्लांट रे प्रथमे स्पोर बनिवो तापर गैमेट बनिवो, हैला? तुम पाठ जानिछ, मु विभिन्न वे रे पढेबी तुमको, विभिन्न वे रे। यू कैन नॉट इमेजिन मैं पाखरे 50 60 70 टेक्निक अछि, हैला? बट यू लिसन मी, जहा जहा लिखुची टिके टिके लिखुता एंड आस्ते आस्ते भल लागियो तुमको। आगु जिबा। वर्तमान मु एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर्म में पढौची भी, देखो आ गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 4 ना केते? 4। नाउ टेल मी
cultivation of flower NCERT रो cultivation of flower is called dash any of you second page रे थिबो हला cultivation of flower floriculture very good okay देखो बड़े बड़े पिला अछन तुम सहित floriculture florist floriculture study of flower किए कोई परिबो anthology study of flower को कौन कहबा anthology arrangement of flower को किए कोई परिबो arrangement of flower taxonomy कोई परिए कि नहीं arrangement of flowers को पिला माने कौन कहबा taxonomy कहबा taxonomy ना कौन कहबा को एटा तो anthology ताले कौन कहबा anthology एटा कहिथिले anthrotaxy कहबा और कौन अछि anthrotaxy can I say inflorescence yes inflorescence very good हला प्राय पिला आंसर दे दोछ हला next expected question number 5 floral bud and vegetative bud ये दोनों homologous और analogous floral bud flower दबो reproduction पाई आ गोटे bud vegetative branch दबो ये दीटा homologous ना analogous very good both are homologous काम अलगा अलगा किंतु origin समान काम अलगा अलगा origin समान sweet potato and potato homologous ना analogous तमे दीटांक स्टोरेज करचंती हैला sweet potato and potato homologous ना analogous sweet potato is a root potato is a stem तो काम अलगा अलगा नो काम समान origin अलगा तले बढ़िया evolution हैला कि नहीं वो the thorn and spine सुनिचे केबे thorn and spine analogous thorn is stem ro modification spine leaf ro modification काम कंटा protection reduction of transpiration हैला बोल पिला ताले आमे आगरे आवरी कहबा मोर जज करने भी फटाफट 10 सेकंड लागिवो हैला तुम खाली छिड़ाई जो माने सर मु केते लेवल अछि ना 300 400 500 600 कहि दे परिए हैला किंतु सेमती करिवेनी आमे कोन हाथ देखिया लोक की हाथ देखि तोर हबनी हैला दैट इज नॉट गुड आमे लास्ट पर्यंत लड़ीबा जा हबो रहली आगु जीवी रहली माने आगु एबास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर केते 6 मते को जे जेबे माइक्रो हबो माइक्रोस्पोर मेल ना फीमेल तू को मेल एंड मेगास्पोर फीमेल व्हाई काहे की हेटेरोस्पोरी होची कारण नेक्स्ट फ्यूचर प्लांट मेल साइड रहबो ना फीमेल साइड रहबो फीमेल ले होमोस्पोरस भी अच्छी कि सेटा प्रिमिटिव आइसोगामी भी अच्छी गामेट्स रे दैट इज आल्सो प्रिमिटिव व्हिच इज एडवांस ऊगामी इज एडवांस नहीं कि फीमेल शुड बी बिगर एंड मेल शुड बी स्मॉलर at nucleus level gamete level like that nucleus level no at cellular level at spore level हला आ ह्यूमन बीइंग गुडा तो बड़ बड़ स्त्री लोक तो दुर्बलिया देख पत्रलिया कंपैरेटिवली हला सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अछि ह्यूमन रिप्रोडक्शन रे किंतु गैमेटिक लेवल ही परिवनी एक बिगर मेल स्पर्म इज स्मॉलर बुझेला कारण नेक्स्ट फ्यूचर ऑर्गेनिज्म मेल साइड रहइबो ना फीमेल साइड रहइबो फीमेल साइड रहइबो सेति पई गोटे गोटे देश रे झियो मानकू भीम बलिया प्रबल खायक दियंती खायक देई तो मोटी करंती भाबंती एई कांसेप्ट भाबी एडा गोटे कुसंस्कार माने से जानि नांती झियो माने मोटा हेले नेक्स्ट जनरेशन विल बी हेल्दी किछि कैंसर करे हेल्दी हेले भलो मोटा हेले नो बुझ परला कि नहीं गोटे गोटे देश रे अरब रो डिफरेंट कंट्री जे सेंती करंती ताहले एपोर्ट साइड हेला मेल एपोर्ट साइड हेला फीमेल तमे माने लिखिबो हला बर्तमान मते कुह स्टामेन मेल रो ना फीमेल रो मेल रो ताले ताको हमें कौन कहबा माइक्रोस्पोरोफिल कहबा कौन कहबा माइक्रोस्पोरोफिल कार्पेल को कौन कहबा कैन आई से पिस्टिल
ताको आमे कौन कहि परिबा मेगा स्पोरोफिल हला आंथर को कौन कहबा वेरी गुड माइक्रोस्पोरांजियम माइक्रोस्पोरांजियम ओविल को कौन कहबा इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरांजियम इंटेगुमेंटेड दो एनसीईआरटी से मैं थोड़ा डिफर कर लिया नहीं स्पोरांजियम अगर स्पोरांजियम होगा तो न्यूसेलस होगा तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरांजियम ठीक है ज्यादा अच्छा है ओबियसली मेगास्पोरांजियम ओके नाउ नेक्स्ट एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या है बताओ फीमेल गैमेटोफाइट करेक्ट और नॉट फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक पोलेन को क्या बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट इसके अंदर क्या होगा हाउ मेनी मेल गैमेट्स 2 एंड इसके अंदर हाउ मेनी फीमेल गैमेट ओनली 1 गुड पोलर न्यूक्लियर आर नॉट फीमेल गैमेट्स ओके वेरी गुड तो डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 3 गैमेट्स अरे डबल फर्टिलाइजेशन है बट 3 गैमेट्स करेक्ट और नॉट 3 गैमेट्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियर वेरी गुड अरे क्या क्या कहना अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे ठीक है ओके आगे चले आगे चले आगे चले ओके आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए ओके तो यहां पर मियोसिस चाहिए कि नहीं यस एक मियोसिस यहां पर कितना मियोसिस एक मियोसिस यहां पर भी इसको बनाने के लिए कितना मियोसिस चाहिए एक मियोसिस चाहिए कितना माइटोसिस चाहिए 2 माइटोसिस यहां पर कितना माइटोसिस चाहिए 3 generations of mitosis how many generations 3 generations of mitosis meiosis की कंप्लीट हो चुका है ओके 3 generation of mitosis but how many cytokinesis उस साइड में इस साइड में तो 2 0 नो अल्टीमेट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है 7 सेल के लिए कितना साइटोकाइनेसिस 6 तो 3 जनरेशन ऑफ माइटोसिस बट 6 साइटोकाइनेसिस तभी तो 7 होगा ना ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में है कि नहीं वॉल फॉर्मेशन हाउ मेनी वॉल फॉर्मेशन 6 वेरी गुड नाउ यहां पर बताइए मुझे यहां पर माइटोसिस रेगुलर है या एक बड़ा एक छोटा भी बनता है एक असिमेट्रिकल डिवीजन है एक सिमेट्रिकल इसका सब कुछ सिमेट्रिकल है ओके आप मुझे बताइए बैठ के आउट ऑफ 4 पोलेंस और माइक्रोस्पोर्स हाउ मेनी डिजेनरेट 0 एंड आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स हाउ मेनी डिजेनरेट 3 इज इट ऑलवेज और इट इज यूजुअली इट इज यूजुअली फर्स्ट क्लास यूजुअली ऑलवेज लिखना नहीं तो यहां पर यूजुअली ठीक है यहां तक हो गया आपका ये कंप्लीट हुआ आगे चलते हैं हम लोग क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको एक स्टार्टिंग का कुछ पेजेस देंगे कि कैसे करते हो ओके ये भी करेंगे मेरे पास पेन ड्राइव भी है क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट क्लास करेंगे चैप्टर एंड होगा तो नेक्स्ट क्लास आज मैं कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं व्हाट इज योर सपोज आज ही खत्म करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट कैन आई कंप्लीट यस मैं कर लूंगा अगर चाहूंगा बट ये 2 क्लास है तो एक एक्टिविटीज के लिए रखेंगे तो थोड़ा आगे जाएंगे पूरा बहुत सारे बच्चे नए आए हैं तो वी शुड गो फॉर थोड़ा सा उनके लिए टाइम एंड स्पेस देंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा और यही फास्ट एग्जाम होगा आपका इजी होगा कुछ प्रॉब्लम होगा फास्ट एग्जाम में ऐसे ना पढ़ाए भी तो हम रख लेते आप फुल मार्क्स चाहिए मुझे ओके एक भी गलत नहीं होना चाहिए देखते हैं ओके नाउ टेल मी आंथर बाइलोब्ड होता है या यूनिलोब्ड होता है बाइलोब्ड ओके बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट भी होता है करेक्ट और नॉट टेट्रास्पोरेंजिएट और इसको आप कट कर दोगे नहीं तो पहले डायग्राम से ऐसे बनाते कि नहीं प्रजापतिया डायग्राम बने लो प्रजापति चार्ली चैपलिन प्रजापतिया निश थिला ना
एटी गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम एटी गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम एटी गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम एटी गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम हैला नाउ दिस इज द लाइन ऑफ डेसेंस याद है यहाँ पर कनेक्टिव है यहाँ पर वास्कुलेचर है थोड़ा जाइलम फ्लोएम नहीं आएगा तो खाना कैसे मिलेगा ओके लाइन ऑफ डेसेंस is also called dash stomium this line is very important book में है या नहीं है नहीं है ठीक है वेरी गुड और यहाँ पर पोलेंस बनता है यहाँ पर भी पोलेंस बनता है यहाँ पर भी बनता है यहाँ पर भी बनता है ठीक है हो गया लाइन ऑफ डेसेंस के लिए बनाया फिर यहाँ पर अगर इसको एनलार्ज करोगे तो कितना लेयर बनता है 4 लेयर्स एक्चुअली जोन्स लिखना चाहिए क्योंकि मिडिल लेयर्स उसको एक लेयर बोला तो व्हाट शुड बी द आंसर 4 जोन्स एक जीव बुझी तो लास्ट जो 4 जन पिला शुभुची तो 4 जोन्स लिखिले भल होता सी किंतु लेयर्स लिखी तुम भी तो जन के चिड़ाओ तू चिड़ाओ एंड कह प्रथमटा एपिडर्मिस तमे प्रथमटा एपिडर्मिस चिड़ा होनी एते टाइम नहीं मो फटाफट जहाँ को कहले तू चिड़ाई जो प्रथमटा कौन एपिडर्मिस सेकेंडटा कौन एंडोथेसियम जदि जानी नथु गोलेबु सिना जानछु बा एपिडर्म छिड़ाई जो मु जानछि कई छिड़ाई जो एपिडर्मिस तापरटा एंडोथेसियम तापरटा मिडिल लेयर्स तापरटा टापेटम हैला बस नाउ व्हिच जोन प्रोवाइड्स नरिशमेंट टापेटम तो फर्स्ट 3 लेयर प्रोटेक्शन एंड लास्ट लेयर बस हैला तो टापेटम गोटे लाइन लिख टापेटम साइटोकाइनेसिस हब ना साइटोकाइनेसिस एब्सेंट कैरियोकाइनेसिस हब साइटोकाइनेसिस एब्सेंट तो इट विल बी बाइन्यूक्लिएटेड then tetranucleated then polyploid that means tapetum becomes polyploid प्रथमे binucleated अच्छी किंतु latter it is polyploid ओके आज फर्स्ट क्लास है आज जितने सारे क्वेश्चन कर लेंगे मैं तो दे दूंगा आपको ओके आई विल गिव यू ओके विल डिस्ट्रीब्यूट आल्सो ओके आप थोड़ा इसको भी डिस्ट्रीब्यूट सर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट आप कर लीजिए यहाँ से पीछे पीछे दे दो केतेटा अच्छी मुझे जानी नहीं गोटे रखी बोधे हो जल्दी जल्दी दियो नहीं नहीं आउ गोटे कोटे पड़ेगा अरे सबको मिला मुझे 1 2 सबको मिला क्या ऑल ऑफ यू गॉट अगर ज्यादा है तो यू रिटर्न आ तुम मान भर मिल गला तो आसूची 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 दौरान बा एक जल्दी जल्दी तुम मान मिलला कार अधिकार जदि फेरे दियो मिल गला तो मिल गला हाँ दे मत दे हेगला तो हाँ वेरी गुड मिलला हाँ वेरी किए पाइना को माने पाइना कह हाँ एटा आमे फास्ट फेज रो करिचे एटा एई भले बहुत देबी मु एटा गोटे फास्ट फेज रे करचे तो फास्ट क्वेश्चन देखो समस्त मेरे अच्छी ना लिखिदेव पर जमती कि हजीबनी एंड यू कीप इट प्रॉपर्ली टिल द एंड एग्जाम सरिया पर्यंत रख तापर भी रखिपार आइडेंटिफाई ए टू जी इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड आंसर अकॉर्डिंगली है बी टाइप जानी पड़ी हाँ ए ओवारी बी सेपाल तो कौटी नहीं सरला बी सेपाल कौटी नहीं है कौन हम सी हम तो पारे अच्छी तो हाँ कर सारे देख देख क्वेश्चन देख सारे तो वेरी गुड ये बहुत क्विक अच्छे फाइंड आउट द ऑड वन आउट कह स्टामेन स्टिग्मा स्टाइल ओभारी 3टा फीमेल गोटे मेल है समस्त है तो तापरटा बर्तमान कह मत
क्वेश्चन नंबर 3 लाइन ऑफ डिस्टेंस अच्छी की अच्छी बीटा बोधे लाइन ऑफ डिस्टेंस की ऑप्शन डी एटा एला फिलामेंट बा स्टॉक बी एला लाइन ऑफ डिस्टेंस सी एला पोलन सैक्स एंड डी एला पोलेंगेंस भल लगुची अरे बुझुछ तो तापरटा क्वेश्चन नंबर 4 टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड टर्मिनल फिलामेंट होगा टर्मिनल लास्ट पार्ट तो आंसर इज डिस्टल या प्रॉक्सिमल बताओ डिस्टल एंड फिलामेंट इज प्रॉक्सिमल ठीक है तो वहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं नाउ द क्वेश्चन इज देखो 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर समथिंग आप लिखना फिलामेंट is attached to filament is attached to thalamus correct और किसके साथ अटैच्ड हो पाएगा पेटल के साथ बट और एक वर्ड भी है टेपाल वो नहीं दिया करेक्ट क्लास 11 में वी हैव प्रिपेयर्ड कि एपीफाइलस इज ए वर्ड ठीक है जनरली किसके साथ अटैच्ड होता है सपोज आई विल मेक द डायग्राम क्विकली स्टिग्मा स्टाइल ओवारी ओव्यूल सेपल पेटल ओके पेटल ऐसे बना लिया और यहाँ पर फिलामेंट है फिलामेंट इज अटैच्ड टू डैश थैलेमस दैट्स वेरी इजी कभी कभी पेटल में अगर अटैच्ड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं एपीपेटालस कंडीशन सोलानासी में होता है कि नहीं एपीपेटालस कंडीशन अगर ये टेपाल के साथ अटैच्ड होता है तो एपीफाइलस कंडीशन या दिस इज एपीसेपालस कंडीशन और एपीपेटालस कंडीशन बोलो यस एपीपेटालस लिखो ठीक से एपीपेटालस कंडीशन मेरे माइंड में टेपाल है अभी भी टेपालस कंडीशन ठीक है तो एपीपेटालस कंडीशन कहां पर है बताओ सोलेनासी पेटल में अटैच्ड हुआ टेपाल में अटैच्ड हुआ तो क्या बोलेंगे एपीटेपालस कहां पर होता है लिलिएसी ऐसे बहुत सारे फैमिली में मोनोकोट में स्पेशली वेरी गुड तो ये याद रखिए वो नहीं दिया इट इज ऑलवेज सेइंग कि फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस नॉले पेटल कि तो टेपाल भी है ही पारे रेयर नाउ क्वेश्चन इज undifferentiated calyx and corolla is called as can any of you tell me calyx and calyx का यूनिट क्या है सेपल कोरोला का यूनिट पेटल undifferentiated calyx and corolla ताकू कौन कहबा पेरियांथ and आर यूनिट कौन द यूनिट इज यूनिट को कौन कहबा टेपाल कहबा हला अरे तमे बेले बेले देखिबो सेपाल नथिबो सब गुडा कलर्ड ताले जेंती टुलिप ताले ताकू कौन कहबा सेपाल कहबा ना पेटाल कहबा ना टेपाल कहबा कैलिक्स ता ग्रुप को कैलिक कहबा ना कोरोला कहबा ना ताकू हमें पेरियांथ कहबा क्लियर एतिक तो हला ताले हमें सेटा पचाले तुमको द टर्मिनल स्ट्रक्चर द डिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन इज आंसर प्रॉक्सिमल इज फिलामेंट इट इज अटैच्ड टू डैश एंड डैश पचार दब जदी कंफ्यूज हबनी यूजुअली प्रथम दिटा पचारिबो द लेंथ वाइज रनिंग ग्रुप ऑन आंसर व्हिच सेपरेट थेका इज कॉल्ड लाइन ऑफ डेसेंस आउ तो माने एबे कोन जानि छो स्टोमियम ता कोन कहंती स्टोमियम वेरी गुड तापरे नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंजियोस्पर्मिक आंसर केतेटा 4 वेरी गुड जदी चाइना रोज एइतांता मालवासी फैमिली ताले दीटा हला वेरी गुड हला तते गुड मिलला फर्स्ट टाइम तो जदी मालवासी एइतांता चाइना रोज एइतांता यूनिलोब्ड बाइस्पोरेंजिएट कैन यू राइट तुम कहे ना सर एटा तो नहीं अच्छी मालवासी फैमिली अंडर रे अच्छी हला
नेक्स्ट पार्ट को जीवी एटा सरला तो ताले एटी गोटे लिखि दियो सांगे सांगे केते एक्सपेक्टेड तमे करिवो इन मालवासी चाइना रोज कॉटन फैमिली इन मालवासी फैमिली चाइना रोज फैमिली कॉटन फैमिली भिंडी फैमिली Abelmoscus esculentus सही फैमिली रे आंथर is unilobed bisporangiate unilobed and bisporangiate clear hello it is unilobed and bisporangiate clear ताले सी जो झीटा कहूला how many sporangia here 2 हला अलगा आइतिले केते हितंदा चारि जोटा से कहूला समस्ते कहूला माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू डैश अरे मेगा गैमेट तो हबनी पोलेन सैक माइक्रोगैमेट पोलेंस कोडा हबो पोलेंस हबो पोलेन सैक श्योर तो वेरी गुड एबे रो रो आ गोटे क्वेश्चन बनाओ लेखो स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यू each cell potential pollen mother cell it will be converted into pollen mother cell क्या देगा बताओ pollen tetrad 4 देगा ना pollen tetrad फिर क्या देगा pollen देगा या माइक्रोस्पोर देगा पहले बोलो माइक्रोस्पोर वेरी गुड माइक्रोस्पोर ओके एट मैच्योरिटी फिर क्या देगा ये पोलेन पोलेन फिर क्या देगा पोलेन ट्यूब के अंदर हाउ मेनी मेल गैमेट्स 2 मेल गैमेट्स यहां तक समझ में आ रहा है ओके सीक्वेंस ही समझ में आया नाउ टेल मी कि हाउ मेनी डिविजन्स बताया था 4 कितना डिवीजन 4 या 1 हाउ मेनी डिवीजन 2 एक है सिमेट्रिकल डिवीजन और असिमेट्रिकल तो आई विल ड्रॉ द डायग्राम इमीडिएटली तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंप्लीट हुआ ये कंप्लीट करो मैं उसके साथ साथ आगे जा रहा हूं एक साथ ये हुआ तो अगर आप लोग क्लास में हो खाली जीवानी एटा नहीं जीवा जदि आमे क्लास रे अच्छे 11 भी एया हबो 12 जमते हबो 11 भी से हबो जदि आमे क्लास रे अच्छे क्लास रे क्लारिटी सहित आसीबा रीडिंग मारी के आसीबा हला बुझ पाछो कि नहीं आउ जो टीचर माने आसीबे आउ जने ऑर्गेनिजम पॉपुलेशन पढैतिबे बोधे आउ जने जे टीचर आसीबे से तोर जो चैप्टर जोटा तू कहतलु मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढैबे हला किंतु मो यूजुअली मोर क्लास सेकंड हाफ रे अछि 4:45 रु तो यू कैन स्टे बैक 10 मिनिट्स आई विल रिक्वेस्ट योर वार्डन टू स्टे बैक हला बॉयज मान तो रोचंदी गर्ल्स माने भी 30 मिनिट्स 15 मिनिट्स सारी की डाउट्स जाई परियो 6:30 रे जिवो आई विल रिक्वेस्ट सर आल्सो आगो जिबा एबे देखो एटा भाबिनियो पोलेन मदर सेल करेक्ट पोलेन मदर सेल चारिपटे गोटे कवरिंग अच्छी से कवरिंग ना कौन जानचो कैलोज नाउ भाबिनियो एटा गोटे पोलेन टेट्राड एटा मोनोकट ना एटा डाइकट एनी ऑफ यू इट इज आइसोबाइलेटरल टेट्राड डाइकट और मोनोकट इट इज मोनोकट अगर ये टेट्राहेड्रल टेट्राड होता तब वो डाइकट होता बट एनीवे हम लोग को उससे मतलब नहीं क्योंकि एनसीईआरटी उसमें कुछ बोलता नहीं है टेट्राड ऑफ पोलेन्स एंड एटा फेर कौन कहबा कैलोज आ कौन कहबा पिला माने को कैलोज जदि कैलोज डिसॉल्व ही जीवो ताले हमको मिलिबो माइक्रोस्पोर जे कि मैच्योरिटी रे पोलेन हबो माइक्रोस्पोर हैज 2 wall layers आपको याद है कि नहीं एक्जाइन एंड इंटाइन ऐसे होता है कि नहीं नाउ दिस वन इज एक्जाइन एंड दिस वन इज इंटाइन एक्जाइन कोउथिरे तयारी पिला माने स्पोरोपोलेनिन कार्बोहाइड्रेट ना लिपिड एंड इंटाइन पेक्टोसेलुलोज is carbohydrate okay pectocellulose is carbohydrate
नाउ टुगेदर दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? स्पोरोडॉर्म। क्या बोलते हैं बोलता हो? स्पोरोडॉर्म। नाउ आफ्टर दैट इट डिवाइड्स सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिकली, ओके, ऐसे एसिमेट्रिकली डिवाइड हो गया। किसका इरेगुलर न्यूक्लियस होता है बताओ? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। Vegetative cell, can I say it is tube cell? Vegetative cell, can I say it is tube cell? Yes. And the smaller spindle shaped cell का नाम क्या है? Generative. तो एक बड़ा वाला सेल है और एक छोटा वाला सेल है, ठीक है? Then pollination होगा कि नहीं? Pollination होगा। And intine फिर बाहर आ जाएगा कि नहीं? Intine आएगा या एक्जाइन आएगा बाहर? बताओ। इंटाइन बाहर आएगा या एक्जाइन बाहर आएगा? बोलो। इंटाइन। और यहां पर आपका ट्यूब सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है? ट्यूब न्यूक्लियस। और योर स्पिंडल शेप्ड जेनेटिव सेल्स विल एंटर, देन इट डिवाइड्स टू फॉर्म, सपोज मैंने इसे कर लिया 2 मेल गैमेट्स, ठीक है? और ये डिजेनेरेट हो जाएगा, ये डिजेनेरेट हो जाएगा। और ये कितना मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट्स, ठीक है? बस मेल पार्ट इज ओवर, ओके। पॉलिनेशन जनरली आपके बाद जो सेकंड बच्चा खड़े हो जाइए, जनरली पॉलिनेशन 2 सेल्ड में होता है या 3 सेल्ड में होता है? बताओ। यूजुअली 2 सेल्ड, ओके, बढ़ जाइए, नो प्रॉब्लम। 2 सेल्ड पढ़ लेना, उस चैप्टर को पढ़ लेना। 2 सेल्ड पॉलिनेशन होता है 60% अराउंड, एंड फिर 40% या लेस देन 40% 3 सेल्ड भी होता है। इफ 3 सेल्ड, तो मेल गैमेट किसके अंदर होगा? पोलन के अंदर होगा या पोलन ट्यूब के अंदर होगा? पोलन ग्रेन के अंदर होगा 3 सेल्ड में। 2 सेल्ड में बाद में बनेगा पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है? तो हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन? 2। हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन? 1। दिस इज मियोसिस, दिस इज मियोसिस। एंड हियर 1 फर्स्ट माइटोसिस, यहां पर एक माइटोसिस है ना, एंड यहां पर सेकेंड माइटोसिस। तो जो हम लोग बोले थे ये खत्म हो गया। मेल गैमेटोफाइट इज ओवर। किसी को अगर डाउट है पूछ लेना, इसके साथ साथ यहां पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। आइडेंटिफाई ए टू ई। ए क्या है बेटा? आप बोले थे ए क्या है? एपिडर्मिस होगा। बी उसके नीचे क्या होगा? एंडोथेलियम। सी क्या होगा? मिडिल लेयर्स। डी क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड ई क्या होगा? tapetum, nutritive, okay, polyploid. The innermost layer of the microsporangium is tapetum. Question number 10. Center of each microsporangium is occupied by this sporogenous tissue. ठीक है? Sporogenous tissue. Now 11 में A को कंसेंट्रेट कीजिए। A है क्या? कनेक्टिव। बस एक में है कनेक्टिव, ओके, दैट पर डी। फिर भी बाकी उड़ा चेक कर लीजिए। ए कनेक्टिव, बी एपिडर्मिस, बी आउटसाइड है एपिडर्मिस, तो ये करेक्ट है। सी एंडोथेलियम, डी स्पोरोजेनस सेल्स, ई टैपेटम एंड एफ मिडिल लेयर्स। दैट मीन्स डायग्राम को देखना पड़ेगा। आज ही शुरू कीजिए, आज ही पूरा बुक का डायग्राम कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है? क्लास 12 का बुक लीजिए, ओनली डायग्राम 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 बायोलॉजी का कंप्लीट करो तो मजा आएगा आपको। नेक्स्ट पार्ट, द आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन आंसर एपिडर्मिस। वेरी गुड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू 13 which of the following perform microsporogenesis? Microspore mother cell same as pollen mother cell, they are for both। और हम लोग को मालूम है बोथ, बताया था ना फर्स्ट डे बोथ।
इफ यू डोंट नो अलग होगा। अगर ये आता मेगास्पर मदर सेल एंड पोलन मदर सेल, क्या बोथ होगा? नहीं होगा, तो वहां पर अलग होगा। इफ यू नो, इफ यू डोंट नो बोथ, बताया था ट्रिक्स। उसके बाद 14, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू। अरे हम लोग क्यों माइक्रोस्पोर मदर सेल कम बोलते हैं, पोलन मदर सेल ज्यादा बोलते हैं मालूम है? फीमेल के लिए एमएमसी है, उसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं? इसलिए हम लोग इसको पीएमसी, उसको एमएमसी बोल के ज्यादा साइंटिफिक कर रहे हैं। ओके, बट एमएमसी ऑल्सो माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके आगे 14 का आंसर दो। इट इज मियोसिस और नॉट, एंड दे आर अरेंज्ड इन ए टेट्राड और नॉट। तो बी क्या होगा? बी क्या होगा? सी क्या होगा? सी तो टेट्राड होगा, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? दिल्ली। फिर ज्यादा साइंटिस्ट डी होगा ना? सी होगा? सी और डी, चेन्नई और दिल्ली? दिल्ली तो, और फिर सी कौन बोल रहा है? चेन्नई। अब देखते हैं। नाउ आई एम रीडिंग एज फॉर दिल्ली। The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis called microsporogenesis. Microspores are arranged in a microspore tetrad. As the anther matures, dihydes microspores develop into pollen grains. तो डी तो करेक्ट है। सी को इंट्रोड्यूस करते हैं, चलो। The process of formation of microspore from pollen mother cell through microsporogenesis is called microspore tetrad. No, तो क्या होगा? डी होगा, दिल्ली होगा। अब 15 में आइए। माइक्रोस्पोर टेट्राड और पोलन ग्रेन्स इज द रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिविजन्स और मेयोटिक डिविजन्स? मेयोटिक। बोथ नहीं लिखना, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस क्या दोनों बराबर है? वी नो, and we know it is also meiosis. तो क्या होगा? meiotic cell divisions. Boys, बुझेला? तापरोडा। No, don't say like that. Very good. Question is good, but don't say like that. कितना अच्छा क्वेश्चन वो पूछी, देखो। बट क्वेश्चन मैंने अच्छा बोला, बट डोंट से लाइक दैट बोला। मियोसिस में जो मियोसिस 2 है, डोंट कंसिडर इट एज माइटोसिस। वाई? एक तो इक्वेशनल डिवीजन है, बट क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि दोनों क्रोमाटिड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर अलग अलग हो गए, बट माइटोटिक क्रोमाटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम्स एक जैसा। समझ में आ रहा है? सेकेंड, माइटोसिस 2n में ज्यादातर होता है या n में होता है, बट ये किस में होगा? n में होगा। बिफोर माइटोसिस इंटरफेज होता है, करेक्ट, बट मियोसिस 2 से पहले इंटरकाइनेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस माइटोसिस से पहले क्या होता है? इंटरफेज। यहाँ पर इंटरकाइनेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, तो इसलिए भी वो नहीं है। समझ में आ रहा है? माइटोसिस सोमाटिक सेल एंड जर्म सेल दोनों में होता है, ये जर्म सेल में है, तो हाउ कैन आई से इट इज माइटोसिस? समझ में आ गया ना? और भी बोलूं? इतना बोलूं और बोलूं? हाँ, बस। उसके बाद तो जो मेरे पापा जैसे दिखते हैं या मामा जैसे दिखते हैं, वो मेरे मामा नहीं है, माउसी है ना। माउसी को बो कहबी कि ना सीया, किंतु देखा होचन ताको बलिया हैला, ताको घरु भी आछचंदी। अरे मामू घर तो समान ना, दी जनकर ताको निज घर। आगु जिबा। डेसेंस ऑफ आंथर इन मिजोफाइट्स इज कॉज्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ आंथर और डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन। देखो केते बढ़िया पिला। डिहाइड्रेशन हेले सिना फाटिबो। मते गोटे पिला तथापि बुझी पार नथिला, मते बहुत कष्ट रे बुझेइली। केन बुझेइली? देखो, मरुभूमि रे कोन माटी फाटे ना, किंतु आमर एठी माटी फाटी जीवो खरा दिने। काहेकि ना जे पानी पीबो सीए फाटिबो, तो से प्रथम कोन पानी नहीं जाए बहुत, तापरे डिहाइड्रेशन नहीं फाटे हैला। मरुभूमि रो बाली फाटी जीवो? फाटिबोनी। आम माटी फाटी जीवो, केना एठी पानी पीबे, फिर पानी मिलिबोनी जतळे। तेणु डिहाइड्रेशन हेले फाटिबो, पानी पीले फाटिबोनी, पी की फाटी जीवोनी। माँ बेंगर पेट फाटला भाया फाटिबोनी हैला। गट आगु जीवा।
Pollen have two prominent whorls which are dash and dash, एक्जाइन एंड इंटाइन. वो बोलेंगे ना, केमिकल्स बोलेंगे क्या? आप कौन सा ड्रेस पहन के आए हो वो बोलेंगे क्या? आपका नाम बोलेंगे ना क्या? तो बस हो गया. उसके बाद इंटाइन इज मेड अप ऑफ डैश. इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज. बोथ. सी. एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. Pattern and design of exine of pollen grains are characteristic features of dash, species of the plant or genus of the plant. Which has real existence? Which taxon has real existence? Species. अरे मैं मांजीपेरा ढूंढ रहा हूं, कोई नहीं मिला मुझे. बट मांजीपेरा इंडिका जब बोलेंगे तब तो मिलेगा. मैं पंडा ढूंढ रहा हूं, नहीं मिला. बहुत सारे पंडा है. मैं सुब्रत बोल रहा हूं, कोई नहीं मिला. बहुत सारे सुब्रत है, बस सुब्रत पंडा एक नहीं. तो व्हाट हैज रियल एग्जिस्टेंस? स्पीसीज. समझ में आ रहे? वेरी गुड. तो ये स्पीसीज होगा. स्पीसीज के कंटेंट के हिसाब से अलग अलग होता है. हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम स्पोरोपोलेनिन. नो सब्सटेंस कैन डाइजेस्ट, नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट इट. यूवी रेडिएशन उसके अंदर नहीं जा पाएगा. ओके. एसिड ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे. अगर तुम स्पोरोपोलेनिन का कोटिंग पहन लोगे तो शायद आप इमोर्टल हो जाओगे. ओके. कोई भी डिजीज मरोगे बट 100 years डिजीज नहीं होगा, क्योंकि नो बैक्टीरिया, नो वायरस कैन एंटर. उसके बाद द स्पोरोपोलेनिन इज नॉन डिग्रेडेबल बिकॉज all of these. Which of the following has proved helpful in preserving pollens as fossils? Again sporopollenin. The function of जौनपुर is, क्या होगा? अरे जौनपुर क्या करता है? जल्दी बोलो. No. All of this. हाँ. Is it microbial? No. It's जौनपुर. माइक्रोपाइल पोलन ट्यूब का एंट्री है. माइक्रोपाइल पैसेज फॉर वाटर है, पैसेज फॉर ऑक्सीजन है, रेडिकल भी है. ठीक है. वेरी गुड. तो देयरफॉर आंसर इज सी. मैं क्या बोला था? ये पर नॉट एब्सोल्युटली श्योर. यहां पर तो हम लोग श्योर है, तो सी होगा. 25 पोलन टेट्राड, देन पोलन. ओके. पोलन टेट्राड फर्स्ट डायग्राम नहीं. बी क्या होगा? वैक्यूल होगा. सी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. डी क्या होगा? असिमेट्रिकल. ई क्या होगा? वेजिटेटिव सेल. एफ क्या होगा? आई थिंक ऑप्शन सी. बार बार चिन्ह ही आ रहा है. नहीं. गुड. एंड 26 व्हेन पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर्ड इट कंटेन्स 2 cells डैश एंड डैश. व्हिच इज स्पिंडल शेप्ड? जनरल. Which will float in the cytoplasm of other generative cells. Who will produce? Why it is called generative cell? Because it is concerned with generations of zygote, next generation, and therefore it is called. ये एक highlights था. फर्स्ट डे में भी क्यों पीछे रहे? ओके. फर्स्ट डे में भी हम लोग कर ले. अरे ये बंद हो गया क्या? हाँ. Now we all are very clear about male. Now we'll go for female. है ना 15 minutes. ओके. तो फर्स्ट लाइन मुझे बताइए. डैश इज द फीमेल होल. गाइनोइशियम. इज इट थर्ड? कभी कभी थर्ड होता है, कभी कभी इनर मोस्ट भी होता है. करेक्ट और नॉट? Why it is innermost? Why female is innermost? It should be well protected by male and calyx and corolla and calyx. Okay? ना ऐसा होगा क्या? अगर कोई गुंडा आ जाए तो पहले वाइफ को आगे डाल के पीछे खड़े हो जाए क्या? ऐसे होगा क्या? होता है कभी कभी. मते मारिलु मो वाइफ को मारिलु देखिए, मारले सागे पुलिस केस हबो हैला. मते मारले चढ़ी जीव. झील पिला हाथ मारला माने पुलिस केस हबो हैला. होता है. ये ह्यूमन बीइंग में होता है, बट इसमें नहीं होता है. इसमें इनरमोस्ट होल का नाम क्या है? गाइनोइशियम. ठीक है.
इसका यूनिट का नाम क्या है बताओ? कार्पेल। कार्पेल बा पिस्टिल जोड़ा तुम पढ़ी नथियो मु सेटा पढ़े दूची हला। एबे को जदि कार्पेल्स फ्री ताले ताको अपोकार्पस कहबा ना सिनकार्पस कहबा? अपोकार्पस रो एग्जांपल को सरला चंपा के अच्छो कि चंपा काना चंपा तो ना हाथ टेकु जा हाँ भाबी नबा तो ना मिचेलिया चंपक आज तेरू तो भूलिबु कियो ना कौन दिया मिचेलिया चंपा चंपक तो अपोकार्पस है। सिनकार्पस सिनकार्पस किए कही पार यूनाइटेड सिनकार्पस किए कही पार जल्दी को नो पापावेर ला भाबी नबा तू हेलु ओपियम अफिम अफिम माने भाबी नबा पापावेर सोमनिवर योर फादर इज वेरी स्ट्रांग पापावेर ऐसे कर लीजिए जैसे भी आप याद कर सकते हो ओके। तो पापावेर भाबिनियो पेंटाफिड पेंटाफिड स्टिग्मा स्टिग्मा फ्री अच्छी पेंटा 5 अच्छी पेंटाफिड स्टिग्मा मालवासी फैमिली रो भाबिने तो नाला चाइना रोज रो बोटानिकल नेम कौन? हिबिस्कस बहिरे अच्छी हला चित्र तो अच्छी हिबिस्कस हला ए तीनटा मन रखियो। बर्तमान गोटे कार्पेल रो कौन कौन थाए पिला माने को स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवारी ओवारी भीतर गोटे ओबुल ना मेनी ओबुल? वन और मेनी। नाउ टेल मी इन ऑर्किड जानछ तो ऑर्किड रे गोटे ओवारी रे वन ओबुल ना मेनी ओबुल्स कहो? मेनी ओबुल्स करेक्ट। मैंगो रे आंबो रे केतडा मंजी? गोटाए टाकुआ। धान रे धान धान चाउल रे गोटे है तो कौथिरे गोटे गोटे कौथिरे टमाटो रे अनेक कखारु रे अनेक वाटरमेलन रे अनेक आम भारी विरक्त लगे नहीं ताकू जदि आम सीडलेस करदबा पार्थेनोकार्पी करदबा ताले बढ़िया हबो आ कोन अछि हला आगर अछि ना पार्थेनोकार्पी आगु जिबा। दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलेंस एंड सरला तो एबे आस बर्तमान मते कह यूजुअली ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस ना अनाट्रोपस? अनाट्रोपस। किंतु पॉलीगोनम बेली गोटे गछ अछि जोटा कि आमर पाइपर पान पान जानछ कि नहीं? पान एंड पॉलीगोनम ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस ए बी एंजियोस्पर्म दिस इज ऑल्सो एंजियोस्पर्म है क्लियर है कि जो एक्सपेरिमेंट होती जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट अच्छी पॉलीगोनम टाइप किंतु से ऑर्थोटोपस तेणु से चित्र लिखी ऑर्थोटोपस 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 हठात मन पड़े अरे एंजियोस्पर्म तो एनाटोपस तेणु दे मेड इट एनाटोपस बुझेगा। प्रथम देखिए स्ट्रेट ओबुल माइक्रोपाइल उपरू को चला जा तलू को किंतु लास्ट उल्टे कौन पाई ना यूजुअली एनाटोपस है क्लियर। बर्तमान एटा ऑर्थोटोपस। बर्तमान देख मुनेली आ ना कौन कह मेगास्पोर मदर सेल एबे सी जोड़ा कहला सेटा करबा मियोसिस 1 हैला ताले डायड ऑफ सेल हबो ना टेट्राड ऑफ सेल हबो कह डायड। फिर मियोसिस 2 हैला एबे कौन हबो लिनियर टेट्राड हबो ना टेट्राहेड्रल टेट्राड हबो? लिनियर टेट्राड। ऊपरटा कौन माइक्रोपाइल केना मु कौथिरे रिसर्च करूची पॉलीगोनम रे हैला तळटा कौन चला जा जदि एटा करेक्ट नुह मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एनाट्रोपस उल्टा हवा कथा किंतु आमे कहा देरे एक्सपेरिमेंट करूचे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पॉलीगोनम रे ऑर्थोटोपस सेति पई हैला। बर्तमान आउट ऑफ 4 केतेटा डिजेनरेट हे जिवे 3 केतेटा फंक्शनल हेबे गोटाए Which one is functional? Chalajal 1 ना माइक्रोपाइलर 1? नो चला जा से पढ़े लिबा सेत पे मु जानि थिले एटा भूल हबो ताले क चलाजल मेगास्पोर इज फंक्शनल उल्टा थाई पारे अरे एमिति भी थाई पारे किंतु चलाजल मेगास्पोर इज फंक्शनल। मेगास्पोरोजेनेसिस इज ओवर समस्ते देखिल तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज ओवर
आउट ऑफ 4 मेगास्पोर केतेटा डिजेनरेट 3 टुवर्ड्स माइक्रोपाइल डिजेनरेट चलाजाल 1 इज फंक्शनल सरला आ परठारु कोन करबी मु मेगा गैमेटोजेनेसिस करबी फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करबी एई जाय करि सरला तुम बही रे से चित्रटा नहीं यही चित्रटा नहीं है बुझी कर सारे तो कौन ना यो नेम हाँ पायल पायल पंडा पाल हाँ एटा सरला तो यू आर फ्रॉम व्हिच एरिया बालेश्वर मयूरभंज कटक कटक हाँ और यू आर फ्रॉम व्हिच एरिया पुरी बोले थे लास्ट क्लास में शायद हाँ एंड आप अनुगुल हाँ वेरी गुड और आप कंधमाल ओके ठीक है आगे चले हो गया तो सल्ला तो ए बाबू ओवर नाउ आउट ऑफ 1 3 डिजिनेट ये कितने बार डिवाइड करेगा एक बार फिर कितने बार डिवाइड करेगा दो बार फिर कितने बार डिवाइड करेगा 3 बार बोला था ना 3 जनरेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 जदि मु लंडन रु आसीची ताले मो ना कौन हम लंडन फेरंता जदि मु सूरत रु आसी सूरत फेरंता ओबियस जदि गोटे न्यूक्लियाई एठू आइला एपट को आ एठू आइला ए माने कोठी थिले पोल रे थिले ना अछंती सेंटर रे किंतु ना दियाला पोलार न्यूक्लियाई कहना से मैंने पोल रु आसीचंती पोलार फेरंता बा पोलार न्यूक्लियाई हैला तापरटा 1 2 3 एपटे अछंती एपटे भी 1 2 3 अछंती हैला बुझि परलो ता माने जदी न्यूक्लियाई कहबा 3 2 3 करेक्ट न्यूक्लियाई कहले कोन कहबा 3 2 3 तापरे माने सेलुलार हे जिवे मु आ सेलुलार चेंज करूनी से माइक्रोपाइल को ऊपर रखिछि बुझि परलो तो एडाला माइक्रोपाइलर रीजन्स एडाला चलाजाल रीजन्स हला यू हैव टू वेदर यू हैव टू आंसर माइक्रोपाइल अपिकल है या बेसाल है माइक्रोपाइल अपिकल एरिया है या बेसाल है नो माइक्रोपाइल जहां पर देखो एक ओवुल है ना ओवुल के अंदर माइक्रोपाइल है तो माइक्रोपाइल किस एरिया में है अपिकल और बेसल अपिकल एंड चला जा बेसल चाहे ऑर्थोटोपस हो चाहे एनाटोपस हो रिमेंबर माइक्रोपाइल अपिकल एंड चला जा बेसल एटा कर दियो हला एबे आसो बर्तमान एठी माइक्रोपाइल साइड रे कोटा अछि को पिला माने फिलीफॉर्म apparatus हला मु pollination and subsequent fertilization and other things I will teach in the next class हला किंतु मु जत्ते बाट आगु जिबा था पढौची जेम त सुविधा हो बुझेला बर्तमान फिलीफॉर्म apparatus is maintained by dash synergids थोड़ा पीछे एक है नहीं तो मर जाएगा कि नहीं पोलन ट्यूब आएगा उसके अंदर घुस जाएगा ओके नाउ दिस इज पोलर न्यूक्लियाई and these 3 are antipodal cells. Now this is central cell. What is the largest cell? Having how many nuclei? 2 nuclei. Okay, central cell having 2 nuclei. Agar largest cell I will say, then what should be the largest? Central cell. And what are the cells which are ephemerals? मतलब short-lived, degenerate. डिजेनेट सेल लो ना को डिजेनेट सेल लो ना को एंटीपोडल रहिबो ना डिजेनेट ही जीवो डिजेनेट ही जीवो लाइक दैट सिनर्जिड्स रहिबो ना डिजेनेट ही जीवो डिजेनेट ही जीवो एंड ए पोलर न्यूक्लियाई दीटा रहिबे हला काम अछि काम नहीं एंटीपोडल काम ही नहीं डिजेनेट बट सिनर्जिड्स रो काम अछि कि नहीं साइनोजिड्स रो काम अछि कि नहीं अछि कोन करिवो केमिकल स्टिमुलस दबो कोन पई दबो पोलन ट्यूब रो ग्रोथ पई हला तले फिलीफॉर्म apparatus कैल्शियम स्टोर करे कैल्शियम कोन पई केमोटैक्टिक पई ना केमोट्रोपिक मूवमेंट पई जल्दी को केमोटैक्टिक मूवमेंट पई ना केमोट्रोपिक मूवमेंट पई
केमोट्रोपिक ऊपर भी है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी है पोलेन और तौक भी पोलेन ट्यूब आसूची, एक्सटेंशन जाऊची। जदि फ्लाजेला हम दौड़ा दौड़ी पड़ेब। केमोटैक्टिक ना केमोट्रोपिक, फ्लाजेलेटेड गैमेट केमोटैक्टिक लोकोमोशन बुझिपार तो टिके बुझिपार तो लोकोमोशन मु एठी अच्छी सेठी अच्छी कि नहीं एटा केमोटैक्टिक मते गोटे बास्ना संगे देला मो फुल मु चली ता पछरे केमोटैक्टिक हला कहना मु एनिमल बा मु डिटैच्ड किंतु पोलेन ट्यूब ऊपर अच्छी पोलेन ग्रेन तार एक्सटेंशन जाउ रूट रूट जियोटैक्टिक ना जियोट्रोपिक जियोट्रोपिक कर्वेचर मूवमेंट है लोकोमोशन नुह से निजे पशि जाऊ रूटा छिंडी की पड़ोची कि तलू तो ना तार एक्सटेंशन जाऊँ क्लीयर है पोलेन ट्यूब भी केमोट्रोपिक क्लीयर है बस आगु जी मन सारू ना असुविधा होची मिस पाल ओवर आपका नाम पद्मालया पूर्णमासी तो निकनेम को हाँ मामाली मामाली मामा समझ में आ रहे ये हाँ आगु जीवा मु तुमको मार्क्स भी बते देछि कौथिरे केते कट ऑफ जीव बते देछि सब बते देछि साइंटिफिकली आ गोटे टीचर को कहितली से टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बतैछंती बतैछन ना जूलॉजी रे बायोलॉजी बॉटनी बतला जूलॉजी ना दीटा हाँ हो ठीक अछि आमे लास्ट को देख दो लास्ट को देख दो कौन छै ना एबे आस नेक्स्ट पार्ट कौन थिला कौन हेई गला एति करके जीवा बहुत सहज बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन भाभी चिंती आंसर दब सहज जेतु भाभी चिंती आंसर दब दैट मीन्स एट मैच्योरिटी इट इज क्रिस्टल क्लियर है तुम बुझी पार्छ मैच्योरिटी रे मेल गैमेटोफाइट 3 सेल 3 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड क्लियर कहीं सेंट्रल सेल इज binucleated and that is female gametophyte is otherwise called as embryo or embryo sac बढ़िया बढ़िया पिला बर्तमान वन तुम कहे सर आमे निजे निजे पढ़ी के आसबू कि हाँ किंतु बाई चांस जने जदि पढ़ी पारलानी भी आमे अच्छू है तुम कहे सेकेंड ईयर पाठ गुड़ा आमे निजे निजे पढ़ी के आसबू कि हाँ पूरा चैप्टर सारी के आस जेकोसी क्वेश्चन मते पचार मु करदेवी है स्टिग्मा मत 2 मिनिट्स अच्छी मो हाथ में है आगू जा स्टिग्मान स्टाइल रहिबो ना डिजेनरेट ही जीवो डिजेनरेट वेरी गुड ओवरी आमे तो ओभारी कहते ओडिया रे किंतु कौन हम ओवरी आमे कौन कहती प्राइमेरी कौन हम प्राइमरी है आमे कहती बासाल कौन हम बेसाल है आमे कहती बनाना नो बनाना है एमती ना तो तेणु मुझे स्टाइल कहली ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा फ्रूट रहिबो ओवरी वॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू डैश अरे बताइए पेरिकार्प ये थीन भी हो सकता है थिक भी हो सकता है मैंगो में थीन और थिक मैंगो मैंगो पेरिकार्प थिक एंड मेसोकार्प इज एडिबल वेरी गुड उसके बाद ओव्यूल ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा सीड में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आउटर इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट होगा टेस्टा और टेगमेन टेस्टा वेरी गुड आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा इनर इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट होगा टेगमेन टेस्टा इज एडिबल इन पोमेग्रेनेट अनार में टेस्टा इज एडिबल ओके ओनली 1 मिनट ओके तो इनर इंटेगुमेंट हो जाएगा टेगमेन डैश इज एडिबल इन अनार डालिम्बो पुनिका पोमेग्रेनेट डैश इज एडिबल मंजी सीड कोटा टेस्टा ना टेगमेन टेस्टा तामाने आमे कौन करंती आमे पूरा खाई जांदी खाया कथा नुहे जूस बनै खाया कथा आमे कौन करंती मंजी तो गिड़ी दवा पूरा बढ़िया लगुची हो न कि एक्चुअली कोटा एडिबल टेस्टा इनर इंटेगुमेंट एबे आसो एक कोथिरे कन्वर्ट हो पिला माने को एक कोथिरे कन्वर्ट हो एम्ब्रियो रे बा जाइगोट रे हबो कि नहीं एक कोथिरे कन्वर्ट हो लिखिलो ना नहीं एक इज जाइगोट बा एम्ब्रियो
सिनर्जिज कौन हम रहिबो ना डिजेनरेट जीवो से मूलरू डिजेनरेटिंग वेरी गुड मूलरू डिजेनरेटिंग मु गोटे वर्ड तुमको कहनी दैट इज न्यूसेलस न्यूसेलस कौन हम कह डिजेनरेटिंग डिजेनरेटिंग जदि टिके रहिबो ता ना कौन कहबा ई परसिस्ट ता ना कौन हम पेरिकार्प ना पेरिस्पर्म पेरिस्पर्म रा दीटा एग्जांपल को हाँ ब्लैक पेपर हाँ के को जबरा वेरी गुड ब्लैक पेपर हम कि नहीं ब्लैक पेपर हम आउर भी गोटे अच्छी कहब आउ गोटे अच्छी जदि दीटा कहब मु गोटे गिफ्ट देवी तुमको है कैस्टर दे देली गिफ्ट गोटे पेरिस्पर्म आउ गोटे एग्जांपल एंडोस्पर्मिक एंड पेरिस्पर्मिक दीटा मिसले कौन हम कैस्टर तो पर कथा हम है वेरी गुड ते गुड मिलला गुड मिल गला जी तो न्यूसेलस डिजेनरेटिंग तापरटा कह एंटीपोडल डिजेनरेटिंग ना नॉट डिजेनरेटिंग एंटीपोडल डिजेनरेटिंग पोलार न्यूक्लियाई कौन हम पोलार न्यूक्लियाई हो एंडोस्पर्म है ठीक है हमें स्कैटर कर दीजिए बट नो प्रॉब्लम आपको सीक्वेंसी मालूम है अंदर से बाहर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऑलरेडी यू नो ओके एग्जैक्टली कंप्लीटेड और इस टाइम के बीच में कितना कर पाएंगे एति कर पाले हमें 26 क्वेश्चन कर ले समस्त असाइनमेंट अच्छी तमें करिछ तमें ताको एनालाइज करबो सेही भले आगु कागु नबो एनसीईआरटी बहिरु सेकंड पार्ट हमें कौन कर ले ना मेल टा पूरा कंप्लीट कर ले फीमेल रो भी इनडायरेक्टली कंप्लीट कर देले थर्ड हमें मेल एंड फीमेल कंप्लीट करके हमें खाली बसिलेनी हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विषय कहीदेले नेक्स्ट क्लास रे हमें कौन पढ़ा पॉलिनेशन जोटा कि टिके इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजेशन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस रे एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट टिके बतेबी तापर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बतेबी एवुडा बतेला परे इमीडिएट कौन हबो फिर असाइनमेंट आसथिबो टोटल सेतबेले फास्ट भी थिबो लास्ट भी थिबो सब थिबो एटा खाली फास्ट हैला and I hope you have enjoyed and you should enjoy all the classes है गोटे दीटा क्लास रे कोन हमर एंजॉयमेंट सरीबो कि हमर एंजॉयमेंट अनसैटेबल and will enjoy throughout the 15 days or 20 days or 30 days then it will be more interesting okay thank you